Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, ma'am. आवाज आ रही है ठीक से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट क्लास में ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन सा मेथड्स हुआ था? Job rotation. We have completed coaching and we have completed job rotation, right? आपके मॉड्यूल में 4 मेथड्स ही दिया हुआ है. एक कोचिंग है, एक जॉब रोटेशन है, जॉब इंस्ट्रक्शन है एंड कमिटी असाइनमेंट. So these two were left. Write down about job instruction. Job instruction. Write down. This method is also known as training through step by step This method is also known as training through step by step. Under this method, the trainer explains to the trainee the way of doing job, job knowledge, and skills and allows him to do the job. The trainer appraises the performance of the trainee. The trainer appraises the performance of the trainee, provides feedback information, and corrects the trainee. Okay. Next process, you write down committee assignment. See, I already explained it to you in the previous classes कि committee assignment क्या होता है. There is a committee of members which are formed in the organization. ठीक है, these are the people who are picked up from within the organization, and then these trainers they are given some problems to solve या फिर to suggest something, to make recommendations. This way what happens is that these trainers, they will study the entire concept, the entire principle, the entire fundamentals and philosophies of the organization, and then will come to the point which is required of him. जैसे एक एग्जाम्पल देके समझाए थे लास्ट क्लास में कि अगर जो कमिटी असाइनमेंट है उसकी कमिटी को ये क्वेश्चन दिया गया है कि आप कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स पे एक सजेशन तैयार कीजिए. You know, you can roam around in the organization, visit various departments, you can see the balance sheet and other things and balance sheets of every organization, every department of the organization, and come to a conclusion कि हम कैसे cost cutting कर सकते हैं. So this is one method जिससे उनका all round development होता है. Organization के हर department से वो information collect करेंगे, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल का मेथड डिजाइन करने के लिए पहले ये जानना होगा कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस पे खर्च करती है, किस डिपार्टमेंट से कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, कौन सा जेन्युइन एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस कट डाउन किया जा सकता है. Okay, for example, they may come to HR department, see the number of people who are there working at managerial post.
एंड देन मान लो कि दे सजेस्ट अ मेजर कि हम आपने ऑर्गेनाइजेशन में 10 मैनेजर हायर करके रखे हैं मिडिल लेवल में, जिसमें से 7 भी अगर हम रखेंगे तो काम चल जाएगा. So probably there will be a cut of 3 managers post. Okay. The other thing, fixed cost में भी कहीं कहीं कट डाउन होने की संभावना होती है, जैसे कटिंग डाउन ऑन नंबर ऑफ एसीज रिक्वायर्ड, कटिंग डाउन ऑन नंबर ऑफ other units, you know, which are there in the expenses required. So this way, to design a method for cost control, they have to go through each and every aspect of the organization. इससे क्या होता है कि उनका जो प्रेजेंट वर्क है वो तो कंप्लीट होता ही होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज दैट वी गेट फ्यूचर मैनेजर्स. जब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतने अच्छे से पता होगा तो प्रॉब्ली दे आर द वंस whom we will prefer for higher posts. Okay, so development of managers is also one of the major takeaway from committee assignment method on the job method. Write down committee assignment. Under committee assignment, a group of trainees are given and asked to solve an actual organization problem which they solve jointly. This in turn also develops teamwork. Okay, so these were on the job methods that are given in your module. Now we shift on to off the job methods. I think by now this much of discussion, it is clear to all of you that off the job methods are those methods which are meant for training, but they are located outside the workplace. Okay, I've given you many examples. Can you name some of the job training institutes का नाम बताइए जहाँ ट्रेनिंग होती है. बताइए, 3-4 एग्जाम्पल तो दिए थे हम क्लास में. Can someone tell me? देखो, Airports Authority of India, which is a mini Ratna organization under Government of India, इसका ट्रेनिंग सेंटर CATC इलाहाबाद है. कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स ज्वाइन करते हैं या जो हायर लेवल के लोगों को ट्रेन करने का भी जो सेंटर है वो IICM रांची है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस. इसके अलावा यू नो दिस दैट IAS ऑफिसर्स जहाँ ट्रेन होते हैं अपने कैडर में ट्रेन होने के पहले जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है उनकी वो कहाँ होती है? हाँ, लबासा मसूरी उत्तराखंड में उनका ट्रेनिंग सेंटर है. इसी तरीके से ये सारी चीजें कहाँ है, क्या है? These are off the job locations. Fine. Write down the first method. The first method is vestibule training. Vestibule training. The term vestibule training is used to designate
The term vestibule training is used to designate training in a classroom for semi-skilled jobs. Training in a classroom for semi-skilled jobs. मैम हाँ बोलो। यार सेमी स्किल्ड का मतलब वो कि वो पहले से भी सारा चीज सीख कर आए हैं। पहले से उनको इन्फॉर्मेशन है। सेमी स्किल्ड का मतलब ये है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से है। जैसे जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ चीज क्या होती है, जैसे मशीन ऑपरेशंस, ऑपरेटिव लेवल के जो लोग होते हैं ना, वर्कर्स लेवल के जिनको ऑपरेट करना होता है, उनको पहले रिटन में भी बताया जाता है, क्लास लिया जाता है कि मशीन का ढांचा कैसा होता है, मशीन को कैसे चलाया जाता है। एंड देन when you imitate an environment which is similar to that of working at a workplace, तब उनको ये सिखाया भी जाता है वर्क चला करके कि इस तरीके से मशीन चलाई जाती है। तो सेमी स्किल्ड जॉब्स वो सब होता है, जैसे टाइपिंग, जैसे क्लरिकल काम बहुत सारा होता है, मशीन ऑपरेटर्स, ये सब। ठीक है। ओके मुस्कान। यस मैम। Now, it is more suitable when a large number of employees must be trained at the same time. मैम इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, द टीम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। The term vestibule training is used to designate training in a classroom, is used to designate training in a classroom for semi-skilled jobs. For semi-skilled jobs. और ये किस टाइप के लोगों के लिए सूटेबल होती है? जहां देखो मशीन तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी होती है ना, तो वैसे केसेस में बहुत सारे लोगों को जब एक साथ ट्रेन करना होता है, तब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज एक्चुअली अ वेरी बेनिफिशियल मेथड फॉर देम। राइट डाउन, इट इज मोर सूटेबल, it is more suitable when a large number of employees must be trained at the same time. When a large number of employees must be trained at the same time for the same kind of work. ये सब कीवर्ड्स है, ये आप जब ट्रेनिंग मेथड्स याद करेंगे तब इसको याद रखना कि large number of employees being trained for the same kind of work. Where this method is used, there should be well qualified instructors. There should be well qualified instructors in charge of the training program. अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या क्या लिखे तुम लोग? क्या टेक अवे था तुम्हारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से? किस टाइप के ट्रेनिंग के लिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यूज होती है? ऑफ द जॉब में ही आता है, लेकिन ऑफ द जॉब में बहुत सारे दूसरे प्रोसीजर्स भी आते हैं। हर जॉब के लिए हर मेथड सूटेबल नहीं होता है। वी हैव टू चूज मेथड्स सूटेबल फॉर सर्टेन जॉब्स। बताओ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से क्या समझे? मैम ये तो एक पहले तो सेमी स्किल लोगों के लिए है ज्यादा। ऑलवेज मेंशन दिस, यस एंड यस मैम। और ये है कि ज्यादा लोगों को सेम वर्क के लिए ज्यादा वर्कफोर्स को ये ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, और देखो क्योंकि ये जनरली ऑपरेटिव लोगों के लिए यूज होता है, इसीलिए ट्रेनर को
बहुत नॉलेजेबल और लर्नड होना चाहिए। वेल ट्रेन, ट्रेनर खुद बहुत वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये बताओ कि इस तरीके की जब ट्रेनिंग होगी तो इस पे ज्यादा फोकस किसका होगा, लर्निंग का या प्रोडक्शन का? लर्निंग का। लर्निंग का। सबको समझ में आया क्यों? बिकॉज यू आर लर्निंग, इट्स एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। और ऑन द जॉब में किस चीज पे ज्यादा फोकस रहता है? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन। ठीक है, ओके, सो राइट डाउन हियर द एम्फेसिस इज ऑन लर्निंग here the emphasis is on learning rather than production. Last line, write down. It is frequently used to train clerks, machine operators, typists, etc. Clerks, machine operators, typists, etc. एक लाइन और लिख लो क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी है इस ट्रेनिंग मेथड का। An attempt is made to duplicate as nearly as possible. An attempt is made to duplicate as nearly as possible the materials, equipments, and conditions found in the real working place. And conditions found in the real working place. देखो एक और चीज है, इतना लिखो मत, लेकिन ये सुन लो। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि किसी बैच के प्रोडक्शन के लिए 100 वर्कर्स को हायर किया गया, जैसे ऑटोमोबाइल ये सब बड़ा सेक्टर है, ठीक है, जब ये यूज किया हायर किया जाता है, मान लो 100 वर्कर्स को हायर किया गया है काम करने के लिए, गाड़ी के पार्ट्स असेंबलिंग के लिए उस लाइन पे। 100 वर्कर्स को एक साथ उसका सुपरवाइजर वर्क प्लेस पे ट्रेन नहीं कर सकता है। इतने अनट्रेन लोगों के साथ आप काम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन हैम्पर होगा। ठीक है, इससे प्रोडक्शन हैम्पर होता है। इसीलिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का प्रोविजन बनाया जाता है ताकि एक कंप्लीटली लाइक सिम्युलेट करना, ओरिजिनल एनवायरनमेंट की तरह बना देना, डुप्लीकेट करके और पहले वर्कर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। आप जब भी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग लिखेंगे, आप ये जरूर लिखेंगे कि दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर सेमी स्किल्ड वर्क, क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे एक्सटेंसिव इलैबोरेट मेथड्स हैं जो मैनेजरियल डेवलपमेंट को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाईली स्किल्ड लोगों को भी ट्रेन करने के लिए बिहेवियरल ट्रेनिंग जब दी जाती है, जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टी ट्रेनिंग, ये सब होता है, वो तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन ऑफ द जॉब में वो मेथड्स भी आता है। मैनेजमेंट गेम्स है, रोल प्लेइंग है, इन बास्केट एनालिसिस है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू राइट अबाउट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यू ऑलवेज मेंशन दैट दिस इज यूज्ड फॉर सेमी स्किल्ड जॉब्स। अच्छा, इसका कोई ड्रॉबैक हो सकता है क्या? पहले एडवांटेज बताओ। अभी तो बताए हम एडवांटेज। मतलब लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। एक साथ ट्रेन कर सकते हैं, सुपरवाइजर के ऊपर लोड नहीं पड़ता है सारे वर्कर्स को एक साथ ट्रेन करने में। पहले वो सीख के लर्न करके तब आते हैं इस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। ओके,
इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? lack of real life exposure, real working conditions. थोड़ा सा और ठीक बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और प्रिसाइज हो. And they do not एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. yes ma'am. ठीक है, गुड. दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप कितना भी डुप्लीकेट कीजिए, लेकिन है तो वो डुप्लीकेटेड. सो there could be chances that when that worker goes back to working in a real environment, real workplace, he or she may have adjustment problems. और कोई ड्रॉबैक जो सोच पा रहे हो? So don't you think that duplication of this entire machinery, equipment and procedures is a costly process? ये आसान तो नहीं होगा. बड़ी बड़ी मशीन होती है, 25 लाख 30 लाख की मशीन होती है, उसको एक जगह पे डुप्लीकेट कर लेना और इंस्टॉल करवाना, दिस इज अ कॉस्टली प्रोसीजर. ओके, तो ये एक पॉइंट है, लिख लो इसका डीमेरिट में. relatively expensive. Which is the next method? ITI का नाम सुना है? उसका बहुत सारा जो ट्रेनिंग होता है वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के मेथड से होता है. नेक्स्ट मेथड क्या लिखे थे? रोल प्ले. रोल प्ले. आई एक्सप्लेन दिस टू यू. देखो ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. ये आगे भी अगर MBA वगैरह करोगे तो उसमें बहुत, अभी तो बहुत छोटे फॉर्म में पढ़ रहे हो, तभी बहुत इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ोगे, चाहे जो भी ये करो. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमेशा ट्रेनिंग से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसीलिए अच्छे से पढ़ो इस चैप्टर को. नाउ टेल मी, रोल प्लेइंग का क्या मतलब होता है? I gave you an example कि छोटे बच्चे जब रोल प्ले करते हैं, when small children they role play the role of a bear or the role of a mango or that of a mosquito, whatever, they completely get into the role. ठीक है, उनको फिर जब शेर की तरह वो बनते हैं तो उनको शेर की तरह बोलना भी होता है, so that they can do justice to the role they are playing. right? रोल प्लेइंग का यही मतलब है. जैसे क्लास में अगर हम दो लोगों को खड़ा कर दें और हम बोले कि तुम में से एक टीचर का रोल प्ले करो, ठीक है, टीचर का रोल प्ले करो. चलो तुम लोग को हम तुम्हारी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं. देखो, मान लो रोल प्ले क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, इसको समझो. अगर तुम्हारे BBM क्लास में हम आए और हम कोई लड़का है या कोई लड़की है जो बार बार ये बोलने के बावजूद कि बात मत करो, हंसी मजाक मत करो, क्लास में मत करो, स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग. ठीक है, 2-3 बार वार्न करने के बाद भी वो नहीं सुन रहा है या सुन रही है, एंड देन आई स्कोल्डेड दैट पर्सन और आई डांट दिया. डांटने के बाद भी दैट पर्सन इज बिहेविंग इन अ वेरी स्टबर्न मैनर, देन आई कट हिज और हर अटेंडेंस फॉर दैट डे एंड आई सेंड हिम आउट ऑफ द क्लास. ठीक है, हो सकता है कि उस लड़के के मन में या लड़की के मन में या उसके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, एसोसिएटेड फ्रेंड्स उनके मन में ये रिजेंटमेंट रहेगा कि मैम ने ओवर रिएक्ट कर दिया. ठीक है, क्लास के बाहर भी निकाल देने की क्या बात थी, कितनी इंसल्ट हो गई है हमारी. ठीक है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट, ओके, आई विल नॉट गिव यू अ हिंट. Next day, I'm teaching you the same thing and I told you कि चलो अब तुम में से एक बच्चा रोल प्ले करो. उसी बच्चे को ये बोल दिया कि तुम टीचर का रोल प्ले करो, और तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर है कि क्लास में सिर्फ पढ़ाना तुम्हारा काम नहीं है, क्लास में प्रॉपर डेकोरम मेंटेन हो, क्लास में प्रॉपर डिसिप्लिन है, ये भी एक टीचर का काम होता है. ऐसा नहीं है कि अगर फ्रंट बेंच पढ़ रहा है, शुरू का 2 बेंच को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो पढ़े और बाकी क्लास को वो टीचर बात करने के लिए छोड़ देगा. ऐसा नहीं होता है. दिस इज माई ड्यूटी टू मेंटेन डेकोरम इन द एंटायर क्लास वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी और नॉट. अब अगर हम उसी लड़के को या लड़की को रोल प्ले करने बोले एक टीचर का,
और उसके जैसे एक स्टबर्न बच्चे को तैयार कर दे, maybe that boy will behave in the same manner that I had behaved the previous day. Okay? तब उसको ये लगेगा कि बार बार बोलने के बाद भी ये लड़का या लड़की सुन नहीं रहा है। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बच जाता है? लास्ट में ऑप्शन यही बच जाता है कि आई विल नॉट गिव यू अटेंडेंस फॉर दैट डे एंड आई विल सेंड यू आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि तुम्हारे रहने की वजह से बाकी लोगों का भी मन बढ़ रहा है, वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो रोल प्लेइंग हेल्प्स यू इन अ मैनर कि वो आपको हेल्प करता है दूसरों के सिचुएशन को भी समझने में, ठीक है? एंड जैसे द अदर डे अगर हम उस लड़के को रोल प्ले करने नहीं बोले तो वो ये बोलेगा कि मैम की पर्सनालिटी ही खड़ूस है, मैम का एटीट्यूड प्रॉब्लम ही है ये, ठीक है? दिस कुड बी वन रीजन, जस्ट एज एम्प्लॉइज स्पीक अबाउट मैनेजर्स। छुट्टी नहीं दिया तो फिर मैनेजर को सीधा ब्लेम किया जाता है कि ये मैनेजर है ही खड़ूस, इसको कोई मतलब ही नहीं है ह्यूमन रिलेशन से, ये है ही बेकार, इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये हैज अ पर्सनालिटी प्रॉब्लम। लेकिन only when you come and take the position of that particular person, you understand the fact कि हमेशा तुम्हारा जो reactions है that is not because of your personality, it is also the manifestation of the situation you are into. समझ में आई बात? You getting this point? ये सबको समझ में आया? यस मैम। रोल प्लेइंग से मेजर टेक अवे क्या होता है, क्यों इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, देखो ये तो बहुत छोटे स्केल पे समझ रहे हो ना तुम, जब रोल प्ले होती है तो ये एक बहुत लर्नड ट्रेनर तुमको रोल प्ले कराता है एंड देन यू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम। जैसे कि वी हैव ऑफन अक्यूज्ड, जब वी आर चिल्ड्रन, जैसे स्पेशली जब बच्चे टीन एज में होते हैं, ओके 16, 17, 18, this is the age where if you do not concentrate on your studies, आपका करियर फॉरएवर भी चौपट हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि किसी को बहुत आँख खुल गई 28 साल में, लेकिन ये एक मेजर करियर बनाने का पीरियड होता है जब आप 10th कर लेते हैं, स्पेशली 12th के बाद से जो 4-5 साल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस एज में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट? स्ट्रिक्ट होते हैं, पढ़ाई करो, घूमो मत, फ्रेंड्स के साथ मत घूमो, ये चीजें सुपरविजन उस वक्त खराब लगती हैं, इसलिए खराब लगती हैं कि लगता है ओ माय गॉड आई डू हैव अ लाइफ, पेरेंट्स कितने इंटरवीनिंग हैं, कितना इंटरफेयर कर रहे हैं हम लोगों से, वी आर नॉट चिल्ड्रन, वी आर ग्रोन अप पीपल। लेकिन जब तुम एक फेज क्रॉस कर लोगे, जैसे अभी तुम लोग 10th के बच्चे को देख के क्या समझते हो, वही चीज होती है। 10th का 15 साल का बच्चा, या तुम 10th भी मत जाओ, तुम 7th 8th में तुम क्या सोचते थे और अभी 7th के बच्चे को देख के बस साइलेंटली छोड़ देते हो ना कि ऐसे ही रिएक्ट करता है इस एज का बच्चा, राइट? यही होती है रोल प्ले। सो वो बच्चा तुमको खड़ूस समझेगा या ये समझेगा कि बहुत इंटरफेयर कर रही है दीदी या भैया, बट when you hold a certain position, when you are responsible, when you are accountable for certain things, जो रिएक्शंस आप देते हैं वो हमेशा आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होता है। दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिचुएशन यू आर फेसिंग, द collection of different parts of the work and putting it as one unity, as one entity. This is your responsibility. ये कभी कभी क्या होता है कि वर्कर्स नहीं समझते हैं या एम्प्लॉयज नहीं समझते हैं। जैसे ऑडिट होने वाला है, अब उस समय किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, वो मैनेजर से छुट्टी मांग रहा है, मैनेजर की अपनी मजबूरी है उसको छुट्टी नहीं देना, ओके? ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि इससे आपने जो काम किया है उसकी जवाबदेही ऑडिट में तो आप ही देंगे। अगर आप उस वक्त छुट्टी पे चले जाते हैं तो क्या होगा, आपका पूरा काम हैम्पर हो जाएगा, उस वक्त उस चीज को जवाब नहीं दिया जाएगा और ऑडिटर के सामने ये फ्रॉड की तरह या एक ब्लफ की तरह आ जाएगा कि मे बी ये काम नहीं किया है तभी ये लोग आंसर नहीं कर पा रहा है। अंडरस्टूड? सो कभी कभी रोल प्लेइंग से क्या होता है कि आप दूसरे के पोजीशन पे जाते हैं और समझते हैं कि उसने कोई पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया या इसका ये बिहेवियर क्यों है।
अगर कोई टीचर क्लास में बहुत लिबरल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ही वो सुपरविजन नहीं रखेगा, तो क्या बच्चे उनका क्लास करेंगे? तुम लोग ऑनेस्टली बताओ, No, नहीं ma'am. करेंगे। उस नहीं करने में वो बच्चे भी पिसे जाएंगे जिनको क्लास तो करना है, लेकिन अपने पीयर प्रेशर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं कि मैम क्लास को चुप कराइए क्योंकि हमको क्लास करना है। ऐसा होता है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये सारी चीजें तो हम लोग समझते हैं कि क्लास में 4-5 बच्चे होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं, उनको पढ़ना होता है, और उनको बाकी बच्चे जो क्लास में शायद पढ़ने के प्रॉपर इंटेंशन से नहीं आते हैं वो पढ़ने नहीं देंगे। सो दिस वे our behavior or our reaction of being strict is a manifestation of the position I am holding. Understood? रोल प्लेइंग अब समझ में आया? यस मैम। अब लिखो रोल प्लेइंग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखो। अच्छा, रोल प्लेइंग का एक और एग्जांपल दे देते हैं तुमको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जैसे कि दो बंदे को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में रोल प्ले करने के लिए दिया गया, एक को कस्टमर बना दिया गया और दूसरे को मैनेजर, मान लो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट से सेल्समैन, जो फ्रंट लाइन सेल्समैन होता है, वो बना दिया गया। What will happen? The customer will always try to bargain for a lesser price and good quality, and the salesman will always try to sell for more price, more profit for the same quantity, for the same quality, right? Now, जब ये negotiation, जब ये बाताबाती होती रहती है और ये सब बड़े टेंडर्स, मान लो कि बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वहां पर पर्सनल मार्केटिंग होती है, मैन टू मैन मार्केटिंग। सुने हो मार्केटिंग में पर्सनल मार्केटिंग? वहां पूरा ग्रुप नहीं जाता है। मान लो कि एक आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी सी आईटी कंपनी है, ठीक है, उस आईटी कंपनी में एचपी का बंदा जाएगा कि मेरा लैपटॉप इंस्टॉल कीजिए, मेरा लैपटॉप दीजिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इसको मिल जाए, ठीक है, तो इसका तो करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। So imagine the person who is representing HP, Hewlett Packard, has to be so much skilled. Can you imagine the kind of skill that this person should have to convert that deal, which is worth crores and crores of rupees for the organization? और वो पर्सनल लेवल पे टॉक करता है, दुकान थोड़ी खोल के रखता है कि आइए कॉन्ट्रैक्ट लेना है। He मैम तो goes ये तो B2B में आ गया ना। business to business, ठीक है, कस्टमर भी बोल सकती हो तुम इसको, वो डायरेक्ट कस्टमर से बात करता है, ठीक है। सो इस तरीके से रोल प्ले करने के लिए जब दिया जाता है, तो एक बंदे को सेल्समैन बना दिया, अगले बंदे को कस्टमर बना दिया। अब देखो, निगोशिएट करते 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 देयर कुड बी अ चांस वेयर यू कैन गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन, राइट? सेल्समैन ये कस्टमर अगर ये बोल दे कि नहीं हमको आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, और सेल्समैन भी तुनक के ये बोल दे कि ठीक है नहीं चाहिए तो मत लीजिए, ऐसा नहीं बोल सकता है वो। he has to convert, वो सब्जी नहीं बेच रहा है, ठीक है, he has to convert that deal is worth crores and crores of rupees, और इससे मार्केट में गुडविल भी बनता है, कितनी बड़ी कंपनी का टेंडर इस कंपनी के पास है। अंडरस्टूड? यस मैम। नाउ राइट डाउन, रोल प्लेइंग इज यूज्ड, role playing is used for human relations role playing is used for human relations and leadership training. Its purpose is to increase the training skills its purpose is to increase the trainees skills, trainee skills in dealing with others. In dealing with others. Under this method,
two trainees are assigned different roles. Under this method, two trainees are assigned different roles to play. Who will interact and play their respective roles. Who will interact and play their respective roles. This also helps the trainees This also helps the trainees in learning how to behave in a conflict situation. This will also help the trainees in learning how to behave in a conflict situations. And appreciate each other's viewpoints. And appreciate each other's viewpoints. Kalpana, set your camera properly. And appreciate each other's viewpoints. ओके, रोल प्ले अच्छे से समझ में आ गया तुम लोग को? अब ढेर सारा एग्जाम्पल है, तो जो खुद भी मेरे समझाने के अलावा भी अपने दिमाग से सोच के लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखे थे? नेक्स्ट मेथड लेक्चर मेथड लिखे थे. Yes, ma'am. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो थोड़ा सा. द लेक्चर मेथड, लेक्चर तुमको पता है ना लेक्चर क्या होता है? जो क्लासरूम लेक्चर होता है, बस ऐसे ही लेक्चर होता है. लेक्चर मेथड बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड होता है और ये बहुत डायरेक्ट मेथड है ट्रेन करने के लिए. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज दैट सम ट्रेनर हु इज लेक्चर मेथड, मान लो इंडस्ट्रियल हेल्थ पे लेक्चर हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे लेक्चर हो रहा है, एम्प्लॉइज वेलफेयर पे लेक्चर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री पे लेक्चर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ने 25 साल पूरे किए, 30 साल 35 साल पूरे किए, कुछ ट्रेनिंग हो रही है. ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है कि लेक्चर मेथड इज द मोस्ट सूटेबल मेथड, क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेट नहीं करना होता है, प्रोडक्शन नहीं है. सो लेक्चर मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू बी यूज्ड एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इन दीज केसेस. The good thing about lecture method is that, see, if there is a class full of 60 students, it's fine. Even if there are 65, it's fine. I'm the one who's lecturing. Okay, अगर 100 हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक माइक की जरूरत हो जाएगी, that's it. लेकिन इससे ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. So lecture method is also one method which is used to deliver information to a large number of people at lesser cost. So cost per training थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें बाकी ऑफ द जॉब मेथड्स के कंपैरिजन में. जैसे हमने वेस्टिब्यूल में देखा कि वो एक कॉस्टली मेथड है, इसी तरह लेक्चर में लेक्चर इज अ लेस कॉस्टली मेथड. राइट नाउ, लेक्चर मेथड इज ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. Direct method of instruction. The trainer organizes the material and gives it to a group of trainee in the form of lecture. The advantage of this method is that it can be used for a large group of trainees
It can be used for a large group of trainees. इसका डिसएडवांटेज बताइए तो आप लोग एकदम ईमानदारी से बताओ, ये तुम ही लोग वाला डिसएडवांटेज है। मैम एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, मतलब जो ट्रेनिंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, तुम लोग समझने लगे उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ट्रेनिंग का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो क्या होता है कि शायद जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है या ट्रेनिंग का जो मटेरियल है वो इफिशिएंटली डिलीवर ना हो पाए। जैसे क्लास में भी अगर तुम लोगों से कम्युनिकेट ना करें और 1 घंटा हम ही बोलते रह जाएं तो शायद यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द क्लास, क्योंकि पैसिव लिसनिंग हो जाती है। देन यू विल नॉट बिकम एन एक्टिव लर्नर, यू विल बिकम अ पैसिव लर्नर which kind of becomes a little monotonous and boring. ठीक है, तो सेम डिसएडवांटेज लिखो इसका। The major limitation is that it may not provide for transfer of training effectively. ठीक है, नेक्स्ट मैम फिर से बोलिए मैम, it may not provide for the transfer of training effectively. For the transfer of training effectively. Okay, next method, कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन में। कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन मेथड। आज हम लोग ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे, ठीक है, ये मेजर पार्ट था इसलिए आई गेव यू इन राइटिंग, क्योंकि ये हमेशा याद रहना होगा मेजर पॉइंट्स हर मेथड का क्या होता है। और भी ऑफ द जॉब में बहुत सारा मेथड्स होता है जो आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, क्या बताए थे हम लास्ट डे, बताओ। अगर तुम्हारे में से चलो एक टॉपिक दे दिया जाए तुमको, बीबीएम का क्लास कैसे कंडक्ट होना चाहिए, और उसके लिए 10 बच्चों को बीबीएम से सेलेक्ट करके हम एक कॉन्फ्रेंस में बैठा दें, तो उससे क्या होगा ये बताओ। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, एक प्रॉब्लम उठा के बैठा दिया जाता है कॉन्फ्रेंस में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एग्जीक्यूटिव्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो वो करते क्या है, यही करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो प्रॉब्लम मत सॉल्व करो, ये बताओ कि उससे होगा क्या। सबका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। वेरी गुड, और knowledge will expand because everyone is giving their input. वेरी गुड, और माही एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, आकांक्षा। ठीक है मैम ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको पता चल जाएगा। जैसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ और बाकी 10 लोग नहीं पूछना चाहते हैं, और या उनके दिमाग में भी समझ नहीं है, तो मेरे को आंसर मिलेगा तो बाकी सबको भी मिलेगा। मे बी ये भी है। कॉन्फ्रेंस का बहुत सारा हिडन बेनिफिट्स भी होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना माही की, दैट कॉन्फ्रेंस जिसकी हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर एक्सट्रीमली स्किल्ड पीपल। वो लोग बहुत ऊंचे पोस्ट पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। दिस इट इज नॉट लाइक अ क्लासरूम, जैसे तुम ये चीज अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल दी कि just as in class, students are sometimes hesitant in asking questions to the teachers although they have the same query. तो बगल वाले से तुम पूछो ना, होता है ना ऐसा क्लास में, तुम पूछो, तुम मैम से पूछ लो, और उसको भी आंसर मिल जाएगा साइड में, बट दैट पर्सन विल नेवर प्लक अप द करेज टू आस्क क्वेश्चन। बट ये आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे काफी सीनियर लेवल के लोग रहते हैं जिनको प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्व करने मिलता है। तब आप सोच सकते हैं ना कि कितनी बड़ी बात है। जैसे सेल्स इस क्वार्टर का कम है, तो अब कैसे बढ़ाया जाए, तो ये किसी के मन में नहीं रह सकता है कि कैसे बढ़ाया जाए। दे विल कम आउट एंड डिस्कस इट। हाउएवर व्हाट मुस्कान एंड वेद सेड आर करेक्ट। यस, कॉन्फ्रेंस में यही होता है कि आपको एक से ज्यादा वर्केबल अप्रोच मिलता है, ठीक है। देयर इज नो वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनीथिंग, देयर आर ऑलवेज बेटर
practices to the best practices in management. Okay. दूसरी चीज, जैसे कॉन्फ्रेंस में that is also a kind of behavior training. अगर आप अपने किसी कलीग से अग्री नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाने लगेंगे वहां पर. Okay, you will not start shouting. You will give up, or you will come up with your own logic. Okay, you'll come up with your own logic, and it is only after the discussion from the entire conference board that a final decision is approached. कभी कभी क्या होता है कि इतना डायकोटमी हो जाती है बोर्ड में कि फिर वोटिंग होती है. ये सुने हो कि नहीं? यस मैम. जैसे कोई एक प्रोसेस अप्लाई करना है, आधे मेंबर्स उसके विरोध में हैं, आधे मेंबर्स उसके फेवर में हैं, तब क्या होता है? वोटिंग करा दी जाती है. The one who secures more vote, उनका मेथड अप्लाई होता है. ओके, लिखो कॉन्फ्रेंस मेथड, जल्दी से लिखो, एक और लिखवा देंगे अभी. A conference is a group meeting. A conference is a group meeting conducted according to an organized plan in which the members seek to develop knowledge and understanding by obtaining a considerable participation. As a member, जल्दी जल्दी लिखो, एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी बाकी है. As a member, a person can learn from others by comparing his opinions He also learns to respect the viewpoint of others, and realize that there is more than one workable approach. Okay. Okay. Next point लिखो, लास्ट जो तुम्हारा मेथड है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. In programmed instructions, the matter to be learned is presented in a series of carefully planned sequential units. Ma'am, carefully planned sequential units. These units are arranged from simple to more complex levels of instructions.
simple to more complex levels of instructions. This is expensive and time consuming. Okay, so we'll end the class, and with this we complete your training module. Understood? अब इसको आप Yes, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए. जब असाइनमेंट बनाने के लिए देंगे तो हम इस चैप्टर से देंगे. आई थिंक यू हैव डेवलप्ड इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट? ओके, Yes, ma'am. okay, fine. Okay, fine.